Hello dear students, okay, now we discuss about our new tissues, example of new tissues. Okay, last video we were studied about animal plant tissue. In this class we discuss about animal tissue. Okay, so you know that what is tissue? Tissue are the combination of cells. ठीक है, जब बहुत सारे cells जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो tissue बना लेते हैं. ठीक है, so at the time we're discussing about in animal tissue. Okay, so what is animal tissue? Animal tissue, just like for taking example in our body there is a lots of millions of cells. Okay, and these millions of cells having a specific functionality in our body. Okay, just like in our body we inhale oxygen. Okay, and this oxygen is received this oxygen is received by our lungs. Okay, and here the lungs mixed our oxygen into the blood and sent it into all parts of the body, and there they can go and make chemical reactions and release carbon dioxides. Okay dear student, so the blood is also a type of cell. Okay, so it is made up of tissue that is known as connective tissue. ठीक है, सबसे पहला चीज तो ब्लड होता है. ठीक है, इन द ब्लड देयर इज ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, all this is stored here, and this can also, sorry, not energy is stored in a cells in a specific part of the region of the body. Okay, and ठीक है, and our body, ठीक है, just like our body most of the things, ठीक है, just like our lungs, okay, our heart, our kidney, these are all made up of muscles. Okay, and our bodies, lots of things are made of muscles. This is the examples of muscular tissue, and these muscles are based on the contraction and relaxation. Okay, so what is contraction and relaxation? ठीक है, contraction and relaxation को समझने के लिए क्या होगा, just like in our body here, ठीक है, when we contract it, ठीक है, this is a position of contract. At the time there is a place, okay, it is a become bigger as comparison relaxation mode. Okay, तो relaxation mode से ज़्यादा जब इसको relax करते हैं, ठीक है, तो it is relaxation mode and it is freely. Okay, so at the time this functionality of relaxation and contraction, the movement will be happen. Okay, इसके थ्रू क्या होता है, movements होते हैं, ब्लड्स के movements बोल सकते हैं, या फिर our जो फूड पाइप्स होती थी in our neck, ठीक है, it is also working on the contraction and relaxation. Our heart is also working as in the form of contraction relaxation. Okay, by through this there is a transportation of things. ठीक है, जस्ट लाइक कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है, जब मैं रिलैक्स करूँगा तो वो क्या आगे हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर मैं दबाऊंगा तो पीछे जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक बलून. ठीक है, बलून को आप क्या करेंगे, उसमें वाटर भर देते हैं. ठीक है, वाटर फिल करने के बाद बलून को क्या करेंगे, अगर वो बलून अगर रिलैक्सेशन मोड में, ठीक है, तो कोई मूवमेंट्स नहीं होगा. अगर मैं उसको पुश करूंगा तो वो क्या होगा, उसमें से जो वाटर से या एयर से वो बाहर निकलने लग जाएगा. ठीक है, या फिर आउटर प्लेस नहीं बना हुआ है उसमें, ठीक है, तो वो क्या होने लगेगा, उसकी जो शेप है वो चेंज होने लगेगी फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, दैट मीन्स द इनसाइड ऑफ मटेरियल इज वांट टू गोइंग आउटसाइड by through some forces. ठीक है, that is where it is called relaxation and contraction. Okay dear student, so these having the functionality of different types of tissues. Okay, just like connective tissue example of blood, ठीक है, muscular tissue example of muscles, and we will discuss each of them in a specific way. Okay, and diagrams please see in your books. ठीक है, मैं भी diagrams आपके यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि they are now at the time, ठीक है, I have very less time, so please we discuss it. Okay, now one by one about the animal tissue. First one is epithelial tissue. And now what is epithelial tissue? ठीक है, so epithelial tissue
in our body, most of the tissues and covers parts of body and protecting them by through the epithelial tissues. ठीक है, तो epithelial tissue क्या करता है, कवरिंग एंड प्रोटेक्ट करता है टिश्यूज इन कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी. ठीक है, एनिमल्स की जो बॉडी होती है उस बॉडी को कवर और प्रोटेक्टिव कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू ही ये प्रोटेक्टिंग एंड कवरिंग होते हैं. ठीक है, एंड इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी एंड कैविटी. कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ठीक है, बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रू एपिथेलियल टिश्यूज. लीनिंग्स of blood vessels, mouth, lung, alveoli, kidney tubules made up of epithelial tissues. एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही ये क्या बने होते हैं, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. मतलब लाइनिंग का मतलब क्या होता है, द इनर पार्ट. ठीक है, जो अंदर का जो पार्ट होता है. ठीक है, जस्ट लाइक ये पेन है, पेन का जो अंदर का जो पार्ट होगा. ठीक है, इनसाइड ऑफ पार्ट, दिस इज कॉल्ड लाइनिंग. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की लीनिंग्स, माउथ की लीनिंग्स. ठीक है, एंड लंग एल्वेली. लंग्स एल्वेली क्या होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं एयर्स को. ठीक है, लंग्स एल्वेली आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे उसे. लंग्स एल्वेली, किडनी टैब्यूल्स. ठीक है, किडनी के इनसाइड ऑफ जो टैब्यूल्स होते हैं. ठीक है, अंदर में जो स्ट्रक्चर्स होती है किडनी की बनी होती है. एंड दिस आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, दिस इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी. मतलब हम लोग बॉडी के अंदर कोई मटेरियल्स अगर लेते हैं. ठीक है, चाहे वो एयर्स हो, फूड हो. ठीक है, या एनी वेस्ट. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी रेगुलेटिंग बाय थ्रू द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब क्या होता है, कोई चीज हम लोग अंदर लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं. ठीक है, एक्सक्रेशन, इनटेक एंड एक्सक्रेशन और एक्सक्रीट करना. ठीक है, दैट इज रेगुलेटिंग बाय थ्रू द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, कभी भी हम ये एपिथेलियल टिश्यू होगा उनसे ये कभी ना कभी ये जैसे कि वो चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं उनसे जाकर के मिल ही जाएंगे. ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू सेपरेटेड फ्रॉम मेन टिश्यू बाय एपिथेलियम टिश्यू इज प्रोटेक्टिंग द टिश्यूज. ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्टिंग द अनदर टिश्यूज. ठीक है, अनदर टिश्यूज को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो इट इज सेपरेटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होता है इससे सेपरेट होता है द मेन टिश्यू. ठीक है, जस्ट लाइक कि ये पेन है. ठीक है, पेन के अंदर में क्या है आपका, एक इंक लगी हुई, इंक की बॉटल लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई. ठीक है, जो सोक करते हैं इनको. तो इस जो स्ट्रक्चर होगी इसकी इनसाइड ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल वो एक डिफरेंट टिश्यूज है. ठीक है, उस टिश्यू को कवर किए गया है बाय थ्रू द एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आएंगे इन चीजों की वजह से. ओके, दिस आर बेसमेंट. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जस्ट लाइक इन आवर all the types of epithelium tissue, there is a blue color substance look like here. These are extra cellular fibrous basement which is separated from the main tissue by through the epithelium tissue. Okay, epithelium tissue having three types: squamous, columnar and cuboidal. Let we discuss one by one. Okay, now squamous epithelium tissue. Okay, so what is squamous epithelium tissue? It is responsible for transportation of substances done in squamous epithelium tissue. इनके थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डन किए जाते हैं. नाउ ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली थिन इन फ्लैट स्ट्रक्चर. इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, दे आर वेरी थिन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज अ स्क्वेमस epithelium tissue. You can see it in NCERT पेज नंबर 25 क्लास 9 साइंस. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑल्सो फिगर्स लाइनिंग ऑफ माउथ. ठीक है, इज कवर्ड विथ दिस टिश्यू. ठीक है, ये टिश्यूज स्क्वेमस टिश्यू से कौन से ऑसोफेगस. ठीक है, ऑसोफेगस क्या होता है, जो हमारे जो फूड पाइप्स होती है, ठीक है, इनसाइड ऑफ अवर बॉडी
दिस इज एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से आप देखेंगे ऐसे आ करके, ठीक है, तो वहां का जो अंदर का जो पार्ट होता है, दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज कवर्ड विद द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बॉडी में ये क्या होता है, हमारे बॉडी की जो स्किन होती है, ठीक है, इट इज कवर्ड विथ पैटर्न ऑफ लेयर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ लेयर्स होते हैं हमारी बॉडी का, ठीक है, आप देखेंगे अपने बॉडी के अंदर पे, तो वहां पे पैटर्न ऑफ लेयर्स होते हैं दैट कैन प्रिवेंट वियर एंड टियर, ठीक है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर में बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उस लिक्विड्स को फ्लो होना, ठीक है, उस फ्लो होने के लिए डिफरेंट टिश्यूज कवर देम, ओके, तो one of them is squamous epithelium tissue, ठीक है, that can prevent they are arranged in the form of pattern, ठीक है, pattern they are stratified squamous, ठीक है, तो at the time ये क्या हो जाते हैं, stratified squamous होते हैं, this is a type of figure of stratified squamous, and next one is columnar epithelium tissue, okay, तो this is a structure of columnar tissue, ठीक है, this is look like this, and this is also called ciliated columnar epithelium, okay, they have many this is found in the body where absorption and secretion occur, ठीक है, in our body जहाँ पे absorption होता है materials जैसे like in a small intestine, ठीक है, and also absorption is done in our large intestine, ठीक है, जहां पर भी एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, ठीक है, एंड सेक्रेशन, जहां से क्या होते हैं, हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं, दे आर फाउंड इन दिस प्लेसेस, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम इज पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ये बने होते हैं यहाँ पे पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो दे आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड it is also found in the respiratory tract, ठीक है, जो respiratory tract होते हैं जहां से लोग सांस लेते हैं, ठीक है, as a cilia, जो cilia होता है वो क्या होता है, cilia has a hair like structures, ठीक है, वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे hair like structures होते हैं, ठीक है, which pushes mucus forward, mucus क्या होता है, जो हमारे नाक से कभी कभी एक लिक्विड मटेरियल्स निकलता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस, ठीक है, तो इस म्यूकस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में फॉरवर्ड करने का जो वर्क होता है which is by through the cilia, and cilia is made up of the ciliated columnar epithelium, okay dear student, columnar epithelium, okay, next one is cuboidal epithelium tissue, okay, cuboidal epithelium tissue is look like this one, ठीक है, these are in the shape of cubes, ठीक है, ये क्यूब के शेप्स में होते हैं, ठीक है, and they are forms, ठीक है, ये क्या क्या चीजों को बन लेनिंग्स ऑफ किडनी टेबल्स, ठीक है, जो लेनिंग्स होते हैं, लेनिंग्स मतलब इनर पार्ट ऑफ किडनी टेबल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स दे आर मेड अप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम्स, ठीक है, डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं इन आवर माउथ, ठीक है, यहाँ से सलाइवा सेक्रेट्स होता है, ठीक है, तो उनकी जो डक्ट्स होते हैं जहां सलाइवा निकलती है, ठीक है, तो वो क्यूबोइडल एपिथेलियम्स के थ्रू ही बने होते हैं, ठीक है, इन विच ग्लैंड सेल्स, ठीक है, ये ग्लैंड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, दैट सीक्रेट सब्सटेंसेस, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, डक्ट्स सलाइवरी ग्लैंड इससे बने होते हैं, ठीक है, एंड सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू में ये सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है, समटाइम्स जैसे हमारे मुंह में एक लिक्विड सब्सटेंस है विच इज सीक्रेटेड बाय थ्रू द सलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, they are sometimes they are fold inward in structure, ठीक है, and they are formed at a time multicellular gland called granular epithelium. Now we are studying about the connective tissue, ठीक है, it is a type of tissue, connective tissue. Its name is implies connective, that means it connects all the body parts in our body, ठीक है, by through just like blood is a connective tissue, ठीक है, blood is connected, ठीक है, और transported all the materials which is inside of the blood, ठीक है, blood में जो भी चीजें materials होते हैं, the suspended material inside of blood
which can be transported in all the body parts and connects them. ठीक है, तो that is called it connects various body of parts. ठीक है, acts like binding. ठीक है, ये क्या करता है, बाइंड करता है, उनको क्या करता है, एक दूसरे को बांध के रखता है. ठीक है, बाइंडिंग का मतलब सपोर्टिंग. ठीक है, दे गिव सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट, टू स्क्रेट फॉर सेक्रेट्स. ठीक है, एंड पैकिंग मटेरियल. ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं इनसाइड ऑफ, ठीक है, जितने भी चीजें होती हैं, जस्ट लाइक ब्लड सस्पेंडेड विद मैनी थिंग्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. तो दीज आर ऑल पैकिंग बाय थ्रू द कनेक्टिव टिश्यूज, पैक्ड बाय थ्रू द कनेक्टिव टिश्यूज. सेल आर लूजली स्पेस. ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो काफी ज्यादा स्पेस होता है. ठीक है, लूजली स्पेस बोला गया. सेल्स आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं, दे आर इंटरसेलुलर. इनके सेल्स के बीच में जस्ट लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होगा, डेंस स्ट्रक्चर्स भी हो जाती है कहीं कहीं पे. ठीक है, एंड रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यू. लेट्स सी वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नाउ बाइंडिंग. ठीक है, बाइंडिंग मींस दैट एक्ट्स लाइक बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग. ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग इसके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जस्ट लाइक की टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर ब्लड, बोन्स, ओके, एंड जस्ट लाइक ब्लड्स. ठीक है, तो ब्लड्स क्या होता है, ब्लड्स इज लाइक अ फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है, इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ठीक है, जो ब्लड्स होता है, ब्लड्स में क्या क्या होते हैं, आरबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है. ठीक है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू. ठीक है, एंड दिस वन इज बाइंडिंग मटेरियल इनसाइड एज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड मटेरियल्स, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये ब्लड का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, तो ऐसे ये टाइप ऑफ क्या हो गया, आपके कनेक्टिव टिश्यूज हो गए. ब्लड टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, देन आफ्टर आते हैं बोन्स की बात. बोन्स प्रोवाइड आवर बॉडी सपोर्टिंग. ठीक है, सपोर्टिंग जो होता है, इट इज प्रोवाइड बाय थ्रू द बोन्स विच इज आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, एंड दिस आर ऑल पैक्ड मटेरियल्स. ठीक है, जो ब्लड्स होता है, ये भी एक पैक्ड मटेरियल्स है. ठीक है, जो बोन्स हैं, वो भी एक पैक्ड मटेरियल्स हैं. टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट, ओके. तो बोन सेल्स आर एम्बेडेड विद हार्ड मटेरियल जस्ट लाइक बोन्स, कैल्शियम्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. रिजिड मतलब क्या होता है, बोन्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं बाय थ्रू द कैल्शियम, तो विच इज अ रिजिड एंड डेंस मटेरियल्स. ठीक है, एंड टू बोन्स आर कनेक्टेड विद द लिगामेंट. ठीक है, जो दो बोन्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू. ठीक है, बोन्स जो होते हैं वो किनसे कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द ligament. This is also a type of connective tissues. ठीक है, तो दो बोन्स जो है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय थ्रू द लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. एंड इन अवर बॉडी कार्टिलेजेस आर फाउंड. ठीक है, जस्ट लाइक इन अवर ट्रैकिया. ठीक है, हमारे गले की हड्डी जो होती है वो काफी नरम होती है, नाक की हड्डी होती है, कान की जो हड्डियां होती है. ठीक है, these are there is a found of cartilages. So these cartilages are made up of connective tissues. देन आते हैं, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, देन नाउ मस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, तो व्हाट इज मस्कुलर टिश्यूज, दे आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. ठीक है, ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये किनसे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन योर बॉडी. ठीक है, बॉडी में जहां पर भी मूवमेंट होता है, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. ठीक है, एंड दे कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ठीक है, बाय थ्रू दिस मूवमेंट इज ऑकर इन अवर बॉडी. मूवमेंट्स जो होते हैं बॉडी में वो इनके थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं, बाय थ्रू द कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स. ठीक है, जस्ट लाइक इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन प्रोटीन्स. They are found everywhere in a body where movement is required. ठीक है, एग्जांपल इन योर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स. ठीक है, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड इन विच बोथ हैविंग अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वर्क. ठीक है,
of the substances. Okay, dear student, that is muscular tissues. Okay, and for your more information, please read your book for your getting. Okay, now we discuss about the nervous system. This is a diagram of nervous system. Okay, in which nucleus, dendrites, axon, nerve ending. Okay, these are formed. Okay, and dendrites. So cells of nervous system are responsible for stimuli. ठीक है, in our body the messages is sending by through the nervous system. ठीक है, जो nerve systems होते हैं उनके थ्रू मैसेज जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, रिस्पॉन्स किए जाते हैं. एंड जो भी चीज हमारे बॉडीज में होते हैं, जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई चीज हीट नहीं, अगर हीट वाली चीज आपकी बॉडी में अगर टच हो जाती है, ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्डेड, दिस इज स्टिमुली सेंडिंग टू यूर brain by through the nerve system. This is look like this thing. ठीक है, it is connected to your brains and your body cells. They are found in brain, spinal cords, ठीक है, nerves, and जो nerves होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं. ठीक है, the cells of this tissue is called nerve cell, neurons, and this connected with axons. ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक्सॉन्स के साथ में, एंड दिस एक्सॉन इज कनेक्टेड विद द नर्व एंडिंग, एंड हियर इज सम रिसेप्टर्स आर दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स. ठीक है, डेंड्राइट जो होते हैं जो रिसीव करते हैं मैसेजेस को एंड सेंड देम हियर, एंड दिस ट्रांसमिट टू नेक्स्ट लेवल. तो दिस इज कॉल्ड नर्व टिश्यूज.